So we'll start again with harmonics and overtones. So in the last session, we have introduced this concept of harmonics and overtones. The idea is very simple. Whenever you have any instrument producing sound, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो वायलिन हो, whatever it is, तो vibrations, basically vibrations ये word general word है, because you may have a string, आपके पास एक string है which is tied at two ends, या फिर आपके पास एक air column है. Air column मतलब एक pipe है basically, and this pipe can be open at both the ends or it can be closed at one end. So when a string or air column vibrates, it basically consists of frequency, जिसमें एक सबसे छोटा frequency होगा along with higher frequencies. तो example, हमने एक इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट कर दिया, तो it is consisting of smallest frequency which is n and higher frequencies. तो जो smallest frequency होती है along with all the integral multiple are called as harmonics. तो smallest frequency along with all the integral multiple are harmonics. अच्छे से याद कर लो ये. So the smallest frequency is called as fundamental frequency, or it is also called as first harmonic. The second frequency, it is called as second harmonic. Third frequency is called as third harmonic, so on and so forth. So smallest frequency along with all the integral multiple is known as harmonic. So these frequencies are harmonics. Then overtones. Overtones का सिंपल सा मतलब ये है, the higher frequencies other than fundamental frequencies which are present are known as overtones. ऐसा हो सकता है कि you have n, then you directly have 3n, then you have 5n, then you have 7n. इसमें 2n, 4n, 6n मतलब even multiples are missing. तो इस केस में जो पहला frequency है, it is again fundamental और first harmonic. Then उसके बाद का जो next higher frequency है, इसको बोलते हो first overtone. And ये जो है इसको बोलते हो आप second overtone. Then it is third overtone, so on and so forth. So higher frequencies which are present in set of frequencies other than fundamental frequency are known as overtones. जो भी present होगा, अगर 2n है तो 2n will become first overtone, right? लेकिन harmonics, to be very specific, harmonic is integral multiple of fundamental frequency. Overtone मतलब higher frequencies other than fundamental frequency. So this is something that you should know. अगर इतना पता है, तो we can start with vibrations of a stretched string. So vibrations of a stretched string. So what we have is, हमारे पास string है. We are making this string vibrate. Before we make this string vibrate, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो stretch string है, इसमें आपने अभी vibrate करना मतलब क्या, इसको pluck करना, कहीं तो एक जगह पे pluck किया, and then you pluck it, मतलब इसको आपने disturb किया और छोड़ दिया. Then you have transverse vibrations. Transverse आपको पता होता है, transverse में क्या होता है? If the direction of propagation is x-axis, the particles of the medium are vibrating along y-axis. So you may have such a wave, right? Then, of course, loop formation तो होगा वहाँ पे. Good. But point number one, which is very important, this is transverse vibration. मतलब transverse wave है ये. तो 11th standard में आपने सीखा है, transverse wave on a stretched string, velocity of this wave is given by under root of T by M, where T is tension in the string. क्योंकि आपने उस string को stretch करके rigid support पे tie किया. Stretch किया मतलब tension. So T is tension in the string and M is not mass of the string, it is linear mass density, मतलब mass per unit length. अगर इस पूरे string का length L है और total mass string का M है, तो small m is mass per unit length. मतलब simple language, अगर मेरे पास 10 मीटर का वायर है
और उसका टोटल मास 20 किलोग्राम है, तो 1 मीटर में कितना, 20 किलोग्राम बाय 10 मतलब 2 किलोग्राम पर मीटर। तो m जो होता है दिस इज कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट लेंथ। तो इतना पता होना चाहिए। सो इफ यू नो दिस, देन let us talk about modes of vibrations of a stress string. What do I mean by modes of vibration? Modes of vibration. Modes of vibration का बहुत सिंपल सा मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस स्ट्रिंग। अब डिपेंड करेगा कि आपने इस स्ट्रिंग को प्लग कहां पे किया है, आपने कहां से इसको प्लग करके रिलीज कर दिया। इफ यू प्लग दिस स्ट्रिंग एट द सेंटर, सेंटर पे प्लग किया और छोड़ दिया, तो व्हाट यू गेट इज वन लूप। वन लूप। अगर आप इसको 1/4 डिस्टेंस पे प्लग करके छोड़ दोगे तो व्हाट यू गेट इज 2 लूप्स। तो वही स्ट्रिंग था, वही टेंशन था, everything was same, length भी same था, only the point where you are plugging decides how many loops. So you may have 1 loop, you may have 2 loop, you may have 3 loop, you may have 4 loop, so on so forth. तो इनको हम बोलते हैं modes of vibration. तो ये जो सबसे simplest mode is called as fundamental mode of vibration. उसमें आपको मिलता है 1 loop, just 1 loop is obtained. तो याद रखना। तो depending on आप स्ट्रिंग को कहां पे प्लग कर रहे हो, you may have different modes of vibration. उसमें जो सबसे पहला मोड है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो एज यू कैन सी इन द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन यू हैव 1 लूप, और 1 लूप का मतलब है 2 नोड्स। देयर आर 2 नोड्स कहां पे, एट द रिजिड सपोर्ट्स, जहां पे स्ट्रिंग को टाई करके रखा है वहां पे, एंड राइट एट द सेंटर। कल का लेक्चर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, जहां से वेव स्टार्ट होता है वहां पे एंटीनोड बनता है। प्लग कहां किया आपने, सेंटर पे, मतलब डिस्टर्ब कहां किया, सेंटर पे, मतलब वेव कहां से स्टार्ट हुआ, सेंटर से, तो सेंटर पे क्या बनेगा, एंटीनोड। तो इन दिस केस इन द मोस्ट फंडामेंटल मोड यू हैव 2 nodes and 1 antinode. तो इन टोटल यू हैव 1 loop, तो यू विल हैव 1 loop here. तो पहले मोड में 2 nodes and 1 antinode, which means you get 1 loop. हमारा टास्क है टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, और अगर आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी का रिलेशन v इक्वल टू n लैम्डा, तो n इक्वल टू v बाय लैम्डा। नाउ v यू ऑलरेडी नो अंडर रूट ऑफ t बाय m। लैम्डा अगर आपको याद होगा कल ही मैंने बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। तो ये नोड और दूसरा नोड, हाउ मच इज द डिस्टेंस, लैम्डा बाय 2। तो लेंथ इज नथिंग बट लैम्डा बाय 2, क्योंकि ये लेंथ भी है और ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 भी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l। तो फंडामेंटल मोड में you will get frequency 1/2l root of t by m. This is fundamental frequency of stretched string. This is fundamental frequency. Fundamental मतलब सबसे smallest frequency है, इससे small frequency possible नहीं है. This is the smallest frequency of a stretched string. Then, if it is clear, then you can talk about the next mode. अब जो अगला mode of vibration होगा, in that mode of vibration, second mode of vibration basically, so in second mode of vibration what you will do is, सिर्फ आपने इस स्ट्रिंग को जहां पे प्लग किया that point will be changed. Now you are plugging it at 1/4 distance, किसी भी एंड से, doesn't matter if you plug it from here or from that end, किसी भी एंड से आप इसको प्लग कर सकते हो। एंड as you remember, जहां प्लग किया, कहां प्लग किया, यहाँ पे, तो here you will have antinode, so you will get in this case 2 loops. Okay, so in this case you have in total 3 nodes, right, one right at the center और 2 कहां पे है, at the ends, और 2 antinodes, so you have 1 antinode over here and other over here. So in the second mode of vibration,
you have 3 nodes and 2 anti nodes, मतलब in total 2 loops. ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है. यू विल जस्ट सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. 3 नोड एंड 2 एंटी नोड, मतलब 2 लूप्स. एंड ऑफ कोर्स इन दिस केस लेंथ विल बी इक्वल टू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, एंड अगेन फ्रॉम हियर टू हियर इज लैम्डा बाय 2, मतलब लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 इज लैम्डा. बट इन दिस केस आई विल राइट लैम्डा 1, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो गया. व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लूप्स. तो ये वेवलेंथ चेंज हो गया, यहाँ का वेवलेंथ लैम्डा लिया है तो वहां पे आप लोगे लैम्डा 1, राइट. देन अगेन हमको क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी n. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर n? v बाय लैम्डा n. लेकिन n किसका? n1. और कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये n1 मतलब फर्स्ट ओवरटोन है. This is not fundamental. This is first overtone. The next higher frequency. Book to book notations will change. Some books will call this as N1. तो इसको बोल देंगे N2, right? अगर वो हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, इसको लिखेंगे N1. ये सेकंड हार्मोनिक, इसको लिखेंगे N2. अगर वो ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो they will write this as N1, right? तो what will be N1? V by लैम्डा 1. मैंने V1 नहीं लिखा क्योंकि as you can see velocity depends on tension and mass per unit length. Did you change tension? No. Did you change mass per unit length? No. mass per unit length कब चेंज होगा? जब आप वायर चेंज कर दोगे. वायर चेंज किया था क्या हमने? नहीं. तो फिर V will remain same, right? तो V मतलब रूट ऑफ T by M. और लैम्डा 1 कितना आया? L. पिछले केस में लैम्डा कितना था? 2L. इस केस में कितना है? L. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2. सिर्फ 2 एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, राइट? तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट ओवरटोन इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब सेकंड हार्मोनिक. तो इन दिस केस फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक. और एक चीज आपको नोटिस करना है विच नॉर्मली वी डू नॉट नोटिस. जब एक लूप था तो न्यूमरेटर में 1 था, जब 2 लूप है तो न्यूमरेटर में 2 है, राइट? तो 2, बाकी तो स्ट्रक्चर इज सेम, 1/12 रूट ऑफ T बाय M. तो ये हो गया आपका सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. देन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में व्हाट विल यू हैव इज अगेन वेरी सिंपल टास्क. In third mode of vibration, the string will be plugged such that, जो string है इसको हम ऐसा plug करेंगे such that 3 loops are obtained. तो आपके पास 3 लूप आएंगे यहाँ पे. 3 लूप मतलब 4 नोड्स, 1 2 3 and 4. एंड कितने एंटी नोड्स? 3 एंटी नोड्स. So in this case you will have in total 4 nodes and 3 anti-nodes, which gives you 3 loop, right? And this length is L. Then what is the distance here? यहाँ से मतलब from this point to this point lambda by 2, this point to this point lambda by 2, and again lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, 3 lambda by 2. तो L is equal to 3 lambda 2 by 2. क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो गया तो मैं इसको लैम्डा 2 लिखने वाला हूँ. सिंपल है. तो अगेन फ्रीक्वेंसी N2 will be V by lambda 2, but lambda 2 from here as you can see is 2L by 3. तो put it under root of T by M. lambda 2 is 2L by 3. तो देखो 3 लूप तो ऊपर क्या आया? 3. तो N2 is 3 times of N, मतलब सेकेंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, राइट? अब नेक्स्ट मोड में जाओगे तो N3 विल बी 4N, थर्ड ओवरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक. उसके अगले में जाओगे तो फोर्थ ओवरटोन विल बी फिफ्थ हार्मोनिक. तो इन जनरल योर कंक्लूजन, सबसे पहला कंक्लूजन ये है, इफ यू सी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज कैसे आ रहे हैं, यू हैव N, 2N, 3N, 4N.
so on so forth, मतलब all the harmonics are present. So here you can see all the harmonics are present. All the harmonics are present in a stretched string. Number 2, मुझे अगर पीथ ओवरटोन हार्मोनिक नहीं, मुझे अगर पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी कितना था, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, राइट। सेकेंड ओवरटोन का कितना था, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। थर्ड ओवरटोन का कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। फोर्थ का कितना होगा, 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, रिमेंबर ओवरटोन है, हार्मोनिक नहीं है, yes, np इक्वल टू p प्लस 1 टाइम्स ऑफ n, और n आपको पता ही है, what is n, 1 by 12 रूट ऑफ t by n। ये जनरल फॉर्मूला बन गया। पुट, अगर आपको फर्स्ट ओवरटोन निकालना होगा तो पुट p इक्वल टू 1, तो n1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2n, और 2n ही था, यू सी इट वाज 2n। सेकंड ओवरटोन का चाहिए होगा तो पुट p इक्वल टू 2 प्लस 1 3n, इट वाज 3n, और n क्या है, n आपने लिखा है 1/12 रूट ऑफ t by n, राइट। समटाइम्स आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक इज नॉट ओवरटोन, याद रखना, हार्मोनिक इज हार्मोनिक। पहले फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हो फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरे को आप बोलते हो सेकंड हार्मोनिक, तीसरे को आप बोलते हो थर्ड हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक इन जनरल, फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक सिंपल है, m is m into n, खत्म। अगर आपको फर्स्ट हार्मोनिक चाहिए होगा, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो m की वैल्यू क्या डालोगे, 1। अगर आपको सेकंड हार्मोनिक चाहिए होगा विच इज फर्स्ट ओवरटोन, ऑफ कोर्स इन दिस केस सेकंड का क्या था, 2n था क्या 2n, यस, तो पुट m इक्वल टू 2, और ये जो m है इट इज आल्सो नंबर ऑफ लूप्स। तो कभी कभी एग्जाम में आपको नंबर ऑफ लूप्स बताए होते हैं, यू हैव अ वाइब्रेट स्ट्रेच स्ट्रिंग व्हिच इज वाइब्रेटिंग एंड देयर आर 4 लूप्स, और 4 लूप्स मतलब m इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ हार्मोनिक, मतलब कौन सा ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। So this is how you are supposed to identify. Clear यहाँ तक? अब based on this formula, fundamental frequency का formula, अगर आपको ये याद है तो इस पे 3 लॉज बनते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इसमें पहला लॉ होता है लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ, वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, n इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ p by m, लॉ ऑफ लेंथ। तो व्हाट डू यू सी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ आर केप्ट कांस्टेंट। बन गया पहला लॉ, लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ स्टेट्स दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, fundamental frequency of vibration of a stretched string is inversely proportional to vibrating length of the string provided tension and mass per unit length are kept constant. Done. तो ये आ गया आपका पहला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टेंशन एंड m are constants। तो एग्जाम में लिखोगे कैसे, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ लेंथ, it states that fundamental frequency of vibration of a stretched string is inversely proportional to vibrating length of the string provided tension and mass per unit length of the string are kept constant. Done. Number 2, law of tension। तो लॉ ऑफ टेंशन में वही फॉर्मूला यूज करोगे, n इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t by m। यहाँ पे अगर मैं L और M को कांस्टेंट कर देता हूं तो देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। So it states that fundamental frequency of
vibrating string is directly proportional to square root of tension in the string provided vibrating length and mass per unit length of the string are constants. हो गया. Then law of linear density या फिर law of mass per unit length. तो law of linear density वही फॉर्मूला यूज करना है. Just in this case, instead of m being constant, keep tension constant and length constant. तो क्या है आपके पास n, मतलब fundamental frequency is inversely proportional to square root of linear mass density. So it states that fundamental frequency of vibrating string is inversely proportional to square root of linear mass density provided vibrating length and tension are kept constants. Good. Then starting from first, अगर n ये लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप ऐसा लिख सकते हो n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k अपॉन लेंथ. तो n इंटू l इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, सम कांस्टेंट k, राइट. गुड. तो अब यू कैन एक्चुअली वेरीफाई दिस लॉज एक्सपेरिमेंटली. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हो. उस पर जाएंगे. लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी में थोड़ा और आगे भी दिया है, पहले वो देख लेते हैं, देन विल गो टू एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. यू सी सिमिलरली ये जो है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, बट डू यू नो, बट इफ यू रिमेंबर m was mass per unit length, and if you remember mass is volume into density, but if you remember volume, और यहाँ पे वायर की बात हो रही है, स्ट्रिंग वायर is something like this. इसका वॉल्यूम मतलब लेंथ ऑफ द वायर एंड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया L into A, क्योंकि वायर का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है. सो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ अपॉन, ऑफ कोर्स L तो है और रो भी, कैंसल एंड कैंसल. बट डू यू रिमेंबर area of wire is pi r square because cross section is nothing but circle. right, आ गया. This is density constant, this is pi constant, तो m is proportional to r square. तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था और जो इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इसका यूज करता हूं तो therefore from equation number 1 and 2 you have n fundamental frequency inversely proportional to root of m, but root of m is proportional to r square, which implies n is proportional to 1 by r. So fundamental frequency of a vibrating string is inversely proportional to radius of the string. जितना radius ज्यादा उतना frequency कम. Simple. Then ये जो हमने 3 laws देखे हैं, इसमें से कम 2 laws हम experimentally verify कर सकते हैं. तीसरा क्यों नहीं कर सकते? There's a reason behind it. देखो तीसरा डिपेंड करता है linear mass density पे या फिर radius of the wire पे. मतलब मुझे अगर तीसरा लॉ वेरीफाई करना है तो मुझे वायर चेंज करना पड़ेगा, राइट, एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज दैट वायर, राइट. लेकिन पहले 2 अगर आप देखोगे तो सिर्फ वाइब्रेटिंग लेंथ चेंज करना इज सिंपल. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखोगे तब समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज सिंपल. एंड टेंशन चेंज करना इज आल्सो वेरी सिंपल थिंग, राइट. बट चेंजिंग मास यूनिट लेंथ और रेडियस, it demands that wire needs to be changed. तो जो string को vibrate कर रहे थे वही change करना पड़ेगा. That is why experimental verification में हम लोग तीसरे law को verify नहीं करते हैं, because you need to have different wires here. So let us go ahead with experimental verification of laws of vibrating string, or for this we need sonometer. तो पहले सोनोमीटर का सेटअप क्या होता है वो समझ लो. तो you have a table, of course. एक टेबल का कुछ काम नहीं है ऐसा, as such it is not really required. So it is just for support to the box. इसके ऊपर आपके पास एक rectangular wooden box होता है. तो you have a rectangular wooden box kept on top of it.
तो इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स रख दिया आपने. ओके, देन एंड इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. वी आल्सो कॉल दिस एज साउंड बॉक्स. तो यू हैव रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स एंड इसका काम क्या है, रोल भी समझते जाओ. इसका रोल है टू मेक ह्यूज मास ऑफ एयर वाइब्रेट. इसके अंदर एयर होगा और यू वांट टू वाइब्रेट ह्यूज मास ऑफ एयर. आपको एयर को वाइब्रेट करवाना है. तो एयर को वाइब्रेट करवाना, तो एयर अंदर जाने के लिए यहाँ पे होल्स लगने वाले हैं. तो यू हैव साउंड बॉक्स विच इज अ रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स विच इज द पर्पस ऑफ दिस बॉक्स इज टू मेक ह्यूज मास ऑफ एयर वाइब्रेट. अब इसके ऊपर you have knife edges. सबसे पहले you put a rigid support here. Then you have knife edges, जिसको bridge भी बोलते हैं, bridges भी बोलते हैं, but basically I like it to call as knife edges because they're very sharp like knife. So you have knife edges P and Q, and they are kept along the width of box. Width of box मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपका वो रेक्टेंगुलर बॉक्स है. तो विड्थ मतलब इसके ऊपर अलोंग द विड्थ रखा होगा, नॉट अलोंग द लेंथ. तो दिस टू नाइफ एजेस आर केप्ट अलोंग द विड्थ ऑफ द बॉक्स, बट दे कैन रन पैरेलल टू लेंथ. रन पैरेलल टू लेंथ मतलब आई कैन मूव देम. मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ. सो दे कैन बी मूव टू मेक, दे कैन बी मेड टू शिफ्ट अलोंग द लेंथ. राइट. अब इसके ऊपर से आपने एक वायर ले लिया. तो व्हाट यू डू इज यू टेक अ स्ट्रिंग एंड रन इट ओवर दिस नाइफ एजेस. तो यू टेक अ वायर एंड रन इट ओवर नाइफ एजेस, समथिंग लाइक दैट. राइट. अब इसके बाद यू हैव अ पुली. यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पुली है. So remember this thing that the pulley needs to be frictionless. We don't want to include friction here. क्योंकि यहाँ friction अगर include कर दिया तो then equations में आप लोगों को friction भी consider करना पड़ेगा. तो you don't have to take friction. तो यहाँ पे एक pulley लगा दी हमने और इस pulley के ऊपर से हम इस wire को run कर रहे हैं. We are making wire run over this pulley. Then you have a hanger at the free end. तो ये जो आपके पास स्ट्रिंग है इसके फ्री एंड पे आपने एक हैंगर लगाया है. यू हैव पुट अ हैंगर ओवर हियर. और इस हैंगर पे आपने स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट लगा के रखा है. व्हाई स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट? क्यों? बिकॉज व्हाट यू वांट टू डू इज आपको यहाँ पे वेट एकदम से नहीं बढ़ाना. यू वांट द वेट टू बी इंक्रीज ग्रेजुअली. जैसे हाफ केजी से बढ़ाना होगा तो उसमें स्लॉट होता है. स्लॉट मतलब एक वेट डाल दिया, फिर दूसरा वेट डाल दिया, फिर तीसरा वेट डाल दिया. तो इट इज समथिंग लाइक दिस. इसके ऊपर स्लॉट्स होते हैं. इट इज स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट. तो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ सोनोमीटर. तो सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स which has two holes, which is used to make huge mass of air vibrate. Then it consists of two knife edges or bridges which are kept along the width of the box and they can run along the length of the box. Right? One end of sonometer box consists of a rigid support while the other has a pulley. A string of uniform क्रॉस सेक्शनल एरिया. यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे उसका एरिया सेम होना चाहिए. नहीं तो ऐसा वायर बना दिया आपने, अगर ये कहाँ पे उसका एरिया कम है कहाँ पे ज्यादा है वैसा नहीं चलता है. तो इट नीड्स टू बी यूनिफॉर्म. तो द वायर नीड्स टू हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इक्वल थिकनेस एवरीवेयर. ऐसा वायर होना चाहिए. सो यूनिफॉर्म वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मेड टू रन over this knife edges. The free end of the wire consists of a hanger and a slotted weight arrangement is connected to this hanger. Slotted weight arrangement is because when you put slots मतलब weights here, it will provide the necessary tension in the string. जितना ज़्यादा weight डालोगे उतना ज़्यादा tension produce होगा string में. Then the vibrating length of the wire is nothing but the length of the wire between these two knife edges. और vibrating length को change करना है तो knife edges को move कर लो. So that is why
you have this movable edges, मूवेबल नाइफ एजेस, और इसके ऊपर एक पेपर का राइडर होता है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, इसको राइडर बोलते हैं। तो व्हाट वी डू इज we make this string vibrate with the help of tuning fork, and ये जो tuning fork का frequency है it goes to string, and आपको पता होना चाहिए किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो बॉक्स है इसके अंदर जो एयर है उसका भी फ्रीक्वेंसी होगा सम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसका, बॉक्स का, अगर वो मैच हो गया देन द एयर वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड देन दिस पेपर राइडर फॉल्स ऑफ, फिर हम बोलते हो रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस होना मतलब फ्रीक्वेंसी of the vibrating string matches with frequency of air column inside, and then air column matlab string vibrates with maximum amplitude, and then in reality what is happening is formation of stationary waves। तो resonance होने का मतलब ये होता है formation of stationary waves, right? तो number one you need to remember this, मैंने आपको theory classes में example भी दिया था, soldiers जब march करते हैं तो bridge पे मार्चिंग मना होता है, दे आर नॉट सपोज टू मार्च ऑन द ब्रिज। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, सोल्जर्स वर मार्चिंग एंड ब्रिज कोलैप्स्ड। तो पोस्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया कि जो वो फ्रीक्वेंसी था मार्चिंग का लेफ्ट राइट और जो ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी था वो मैच हो गया, रेजोनेंस हुआ, ब्रिज कोलैप्स्ड। तो रेजोनेंस होना मतलब natural frequency of something matching with external frequency, right? Then हमको कैसे समझेगा यहाँ पे रेजोनेंस हुआ कि नहीं? तो आप क्या करोगे, ट्यूनिंग फोर्क लोगे, वाइब्रेट करके देखोगे, पेपर राइडर गिर नहीं रहा, फिर ट्यूनिंग फोर्क लोगे दूसरा वाला, फिर वाइब्रेट करके देखोगे, एंड द मोमेंट दिस पेपर राइडर फॉल्स ऑफ, जैसे पेपर का टुकड़ा नीचे गिर गया, यू से रेजोनेंस हैज ऑकर्ड। और रेजोनेंस ऑकर होने का मतलब ये होता है दैट यू हैव फॉर्मेशन ऑफ लूप्स, स्टेशनरी वेव बेसिकली। यहां तक क्लियर? तो अब हम लोग पहला लॉ जो है वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, हाउ डू वी वेरीफाई दिस, इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इसको वेरीफाई करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ याद है कि आपको n is inversely proportional to L provided tension and mass per unit length are kept constant। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट में एक सुटेबल वेट रख दिया, अब चेंज नहीं करना, मतलब टेंशन इज फिक्स, राइट? टेंशन कहां से आता है? इफ यू रिमेंबर mg वेट, दिस प्रोवाइड्स टेंशन T। तो टेंशन T can be fixed if the mass here is fixed। तो आपने एक बार सुटेबल मास रख दिया इसमें, now tension is fixed, you are not changing tension। दूसरा, मास पर यूनिट लेंथ डिपेंड करता है मास पर लेंथ पे, तो आपने एक बार ये P और Q को सेट कर दिया तो लेंथ इज फिक्स्ड और मास आपने मेजर कर लिया। इस पीस का अब कैसे करोगे? वेरी ऑब्वियस थिंग, या तो दिया होगा, आपको बताया होगा कि मास पर यूनिट लेंथ इज दिस, जो भी वायर है, या फिर आपको टोटल मास बताया होगा वायर का, ना, वायर का टोटल मास मैंने बताया, एग्जांपल 20 किलोग्राम, लेंथ इज 10 मीटर, तो पर मीटर कितना? 2 किलोग्राम पर मीटर। फिर ये P और Q यहाँ पे स्केल होता है, तो यू मेजर व्हाट इज द लेंथ। अगर ये 6 मीटर है तो टोटल मास कितना हो गया? 12, क्योंकि 2 किलोग्राम पर मीटर इंटू 6 मीटर, तो टोटल 12 किलोग्राम, right? So in any case m small m can also be measured and is fixed because it is a property of wire, you cannot change it unless you change the wire, right? तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि टेंशन एंड m आर कॉन्स्टेंट्स हियर। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, एक ट्यूनिंग फोर्क लेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी होगा n1, राइट? फिर उसको वाइब्रेट करवाएंगे स्ट्रिंग को, फिर देखेंगे पेपर राइडर फॉल होता है क्या। अगर नहीं होता है तो फिर ये जो PQ ब्रिज है इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। फिर जिस लेंथ पे पेपर राइडर फॉल हो गया मतलब यू हैव रेजोनेंस, और वो लेंथ हम नोट कर लोगे
तो you will note what is N1 and what is L1. सिमिलरली अब दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लोगे, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी होगा N2. उसके लिए वापस से P और Q को डिस्टेंस को चेंज करोगे जब तक पेपर राइडर फॉल नहीं होता. You will note down L2. Then you do it for next tuning fork and so on so forth. ऐसा आप मेजर करते जाओगे. And then what you will find is आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे N1 L1, इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे N2 L2, इनका प्रोडक्ट लोगे N3 L3, and you will find it out कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं इक्वल. अगर इक्वल आ रहे तो हो गया ना प्रूफ. मैंने बताया था N is inversely proportional to L का मतलब क्या होता है? N into L is equal to a constant. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है N1 L1 equal to N2 L2 equal to N3 L3 equal to N4 L4. तो हो गया वेरीफाई. So this is how you verify first law of vibrating string with the help of sonometer box. Simple. Number 2, verification of second law of vibrating string. So how do we verify second law of vibrating string? अगर आपको याद होगा तो second law, what was second law? Law of tension. N is directly proportional to square root of tension in the string. तो सिंपल है यहाँ पे भी. तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे आप टेंशन को कांस्टेंट नहीं रखोगे पर लेंथ को कांस्टेंट रखोगे. मतलब नाउ द लेंथ इज फिक्स्ड. आप ये ब्रिज को P और Q ब्रिज को चेंज नहीं करने वाले हो, बट हियर यू आर गोइंग टू चेंज द मास इन द स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट. तो इसमें आप क्या करोगे, मास को चेंज करते जाओगे. आप क्या करोगे, पहले एक ट्यूनिंग फोर्क लोगे N1, राइट, और यू विल मेक इट वाइब्रेट. फिर देखोगे पेपर राइडर फॉल हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहाँ पे मास चेंज करोगे. मास चेंज करना मतलब टेंशन चेंज करना. तो एक सुटेबल मास पे राइडर विल फॉल ऑफ एंड यू विल नोट डाउन व्हाट इज द टेंशन. टेंशन कैसे नोट करना है, इसमें कितना मास है देखना है, जी से मल्टीप्लाई करना है. इमेजिन ये हाफ ऑफ केजी के पीसेस ब्लॉक्स है. कितने ब्लॉक डाले मैंने, 1 2 3 4 4, हाफ ऑफ केजी के 4. टोटल मास कितना हो गया, 2 किलोग्राम. जी की 10 ले लो, कितना आ गया, 2 into 10 20 न्यूटन टेंशन है यहाँ पे, राइट. 4 की जगह पे 8 होंगे तो 40 न्यूटन होगा. सिंपल, राइट. तो सिमिलरली दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लोगे और यहाँ पे स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट में मास चेंज करोगे, टेंशन चेंज होगा. फिर जिस पर्टिकुलर वेट पे राइडर फॉल हुआ मतलब टेंशन आप मेजर कर लोगे एंड नोट इट डाउन, and then note it down, keep on noting down. Then what you will find out is, of course, from here, as you can see, yahan se what you can see here is this. Just a minute. You see, when n is directly proportional to root of t, मतलब n by root t is equal to a constant. इसका मतलब ये होता है n1 by root t1 equal to n2 by root t2 equal to n3 by root t3 equal to so on so forth. तो exactly same thing you will find here. तो you will see कि n1 upon root t1 और n2 upon root t2 और n3 upon root t3, n4 upon root t4, these are all coming to be equal. तो हो गया वेरीफाई. So this is how you verify second law of vibrating string. क्लियर यहाँ तक? सिंपल है, कुछ नहीं है. 3 लॉज है, उसमें से 2 को वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. पहले को वेरीफाई करने गए तो लेंथ चेंज किया क्योंकि हम बोल ही रहे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. दूसरे को अगर आपको वेरीफाई करना है तो लेंथ फिक्स कर दिया, एम तो फिक्स था, सिर्फ यहाँ पे टेंशन चेंज किया विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द वेट्स हियर. देन ये हो गया. इट इज all about vibrating string. See, when you talk about vibrations या फिर formation of stationary loop, so there are basically 2 cases. एक है vibrating string, एक है air column. Air column जैसे flute, right? तो you next is vibrations of air column. Vibrations of air column. Before we study
vibrations of air column, you should know something called as end correction. देखो normally the idea here is, for example, एयर कॉलम मतलब आपके पास दो डिफरेंट टाइप के पाइप्स है। एक है पाइप ओपन एट वन एंड मतलब क्लोज एट वन एंड, दूसरा है पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। दोनों एंड पे क्लोज कर मत देना, दोनों एंड पे क्लोज कर दे तो साउंड वेव अंदर कैसे जाएगा, तो यू कैन नॉट क्लोज इट एट बोथ द एंड्स। अब करते क्या है हम लोग, वी वांट टू सेंड longitudinal wave inside, and longitudinal wave can be generated with the help of a tuning fork। तो ट्यूनिंग फोर्क के हेल्प से हम लोग मतलब ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे, तो जो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होगा, 11th स्टैंडर्ड याद है, तो फिर ये याद होगा कि ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशंस दे जनरेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, दे कंप्रेस द एयर। यू सी इमेजिनेशन, ये ट्यूनिंग फोर्क है। when these are called as prongs, जब प्रॉन्ग्स बाहर जाएंगे तो वो एयर को कंप्रेस करेंगे, जब वो अंदर आएंगे वो एयर का डेंसिटी कम कर देंगे, तो जो कंप्रेशन वो कहां गया, वो आगे चले गया, फिर वापस से बाहर जाएंगे, फिर कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। वेयर आर दिस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन गोइंग, दे आर ट्रैवलिंग। व्हेन यू स्पीक, व्हेन आई स्पीक, यही हो रहा है। व्हेन आई एम स्पीकिंग, throat is a source of sound, longitudinal wave। तो when I am speaking मतलब एयर के जो पार्टिकल्स है, they are being compressed and rarefied, so my throat is generating compression and rarefaction which is traveling to your ears, then your eardrum vibrate with the same frequency, and then that vibration of eardrum are send a signal to your brain and then you process the information। वही है यहाँ पे भी वही है। तो the idea here is ऐसा है, आपने इसको वाइब्रेट कर दिया मतलब वेव को आप अंदर भेज रहे हो। ये पता होना चाहिए कि नोड्स और एंटी नोड्स, नोड मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, और नो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए, राइट। नाउ इफ आई टेल यू टू डिस्प्लेस, ये इजीली डिस्प्लेस हो सकते हो तुम, राइट। मैंने ये सब कंप्लीटली भर दिया, सब बेंचेस एकदम फुल भर दिए, आप बोला डिस्प्लेस हो जाओ, होगी क्या, तो जगह होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जगह कहां नहीं है, क्लोज्ड एंड पे। तो क्लोज्ड एंड इज द लोकेशन ऑफ नोड फॉर्मेशन, तो ये जो है यहाँ पे बनता है नोड, और ओपन एंड इज द लोकेशन फॉर एंटी नोड फॉर्मेशन। तो आइडियली एंटी नोड शुड बी फॉर्म्ड एट द ओपन एंड, राइट, बट रियलिटी एंटी नोड इज फॉर्म स्लाइटली बियॉन्ड, थोड़ा सा ऊपर बनता है ये। मतलब जब मुझे लेंथ मेजर करना था तो हम क्या कर सकते थे, हम सिर्फ पाइप का लेंथ मेजर कर सकते थे, स्मॉल एल, और यही पाइप का लेंथ होता एयर कॉलम का लेंथ। यहाँ पे दो चीजें अलग अलग है। पाइप इज अ फिजिकल एंटिटी, पाइप ये फिजिकल है, इसका लेंथ आप मेजर कर सकते हो, राइट। और आइडियली जैसे आप स्ट्रिंग की बात करते हो तो स्ट्रिंग में भी तो लेंथ मेजर किया ही ना आपने, किसका, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, यहां पे भी वाइब्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है वो मेजर करना पड़ेगा। मतलब आइडियली तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि द एयर इज वाइब्रेटिंग ओनली इन दिस लेंथ, बट रियलिटी में एंटी नोड थोड़ा ऊपर बना है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन ई। सो द बाउंड्री कंडीशन demands that antinode to be formed at the open end of the tube, a cylindrical tube है ये, right, but in reality antinodes are formed slightly beyond the open end of the tube। The distance between open end of the tube and the location of antinode is called as end correction। तो what is so big deal, इसमें कुछ नहीं है, and this end correction E is equal to 30% मतलब 0.3 of the inner diameter। inner diameter क्योंकि ये जो पाइप है इसका थिकनेस होगा ना, थिकनेस होगा तो outer diameter will be different and inner will be different, so it is equal to 0.3 times of inner diameter, correct।
अगर एक पाइप दोनों एंड पे ओपन है, इफ यू हैव अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज, इस केस में दोनों एंड पे बन जाएगा एंटीनोड, राइट? तो ऐसा ऐसा तो नहीं आ सकता, ऐसा है तो वेव का, दिस इज नॉट अ वेव। तो व्हाट हैपेंस इज यू गेट अ नोड राइट एट द सेंटर, राइट? तो अब इस केस में यहां पे ऊपर एक एंड करेक्शन, नीचे एक एंड करेक्शन। तो ओपन पाइप में दो एंड करेक्शन होते हैं और क्लोज पाइप में एक ही एंड करेक्शन होता है। अब टोटल लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लुक एट द वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब लेंथ ऑफ ट्यूब बोला होगा तो लेंथ ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब, जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम बोला होगा दैट इज करेक्टेड लेंथ। करेक्टेड लेंथ मतलब एंटी नोड से लेके तो या तो नोड तक, क्लोज के केस में या तो एंटी नोड तक। तो व्हाट डू यू सी हियर इज, इस केस में ऑन द राइट हैंड साइड E प्लस L प्लस E, राइट? तो यह है करेक्टेड लेंथ, और इस साइड में E प्लस L। तो करेक्टेड लेंथ या फिर लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये दोनों सेम चीज है, कैपिटल L करेक्टेड लेंथ, in this case is E plus L, and in this case corrected length is E plus L plus E, that is equal to 2E plus L, याद रखना, correct? So small l stands for length of tube, capital N stands for length of air column या फिर corrected length. This is something you need to know. Then अगर ये समझा है तो we can now go ahead, vibrations of a closed organ pipe. अब see, book to book title अलग है. I think your textbook are saying, let me just tell you, they write it down as modes of vibration of air column in a pipe closed at one end. Modes of vibration of a pipe of air column, modes of vibration of air column in a pipe closed at one end. इसी को closed organ pipe बोलते हो. The same thing. This is a air column in a pipe which is closed at one end, या फिर it is called as closed organ pipe. This is modes of vibration of air column in a pipe open at both the ends, या फिर बोलते हो open organ pipe, same है दोनों. तो let us first discuss this case. अब जो पहला केस है, first case is this one. पहला इसको देख लेते हैं हम लोग, इसके कौन कौन से मोड्स है. Let us have a look at the modes here. तो डेफिनेटली यही फंडामेंटल मोड है. Just a minute. Okay. Give me a minute. E. Okay, up to here. Fine. You go there. Your position was here. Fine. अब इसमें आपके पास अलग अलग मोड्स हो सकते हैं. जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग में फंडामेंटल मोड में एक लूप बना, नेक्स्ट हायर में दो लूप थे, राइट? दो लूप थे, उसके बाद तीन लूप थे, राइट? एंड सो ऑन सो फोर्थ. वैसे ही इन केस ऑफ क्लोज्ड पाइप, इन केस ऑफ फंडामेंटल मोड, तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल मोड की बात कर लेंगे पहले. फंडामेंटल मोड मतलब रिलेटेड टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो इन केस ऑफ फंडामेंटल मोड व्हाट डू यू सी? यू सी वन नोड एंड वन एंटी नोड. तो यहाँ पे वन नोड एंड वन एंटी नोड मतलब इन टोटल हाफ लूप, राइट? तो हाफ लूप है, बाकी सारा डेरिवेशन सेम है. अगेन यू विल स्टार्ट बाय सेइंग V इक्वल टू n लैम्डा, n इक्वल टू V बाय लैम्डा. सिर्फ यहाँ पे V इक्वल टू रूट ऑफ T बाय m मत डालना, क्योंकि V इक्वल टू रूट ऑफ T बाय m होता है फॉर अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. यहाँ पे स्ट्रिंग है क्या? नहीं, यहाँ पे एयर है. व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? 330 मीटर पर सेकेंड. तो ये तो वैल्यू ही पता है हम लोगों को, राइट? बट इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो फिलहाल V को V रखो, टेम्परेचर के साथ वो चेंज होगा, राइट? अब ओनली थिंग इज कि व्हाट इज लैम्डा. एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज लैम्डा. ये जो करेक्टेड लेंथ है कितना, ये यहां से यहां तक करेक्टेड लेंथ,
ये करेक्टेड लेंथ है, कैपिटल एल। व्हाट इज कैपिटल एल बाय द वे? यस, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम वन नोड टू वन एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा इक्वल टू 4l, तो ये आ जाएगा आपका n इक्वल टू v बाय 4l। ये आ गया आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल, द मोस्ट मतलब स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी बेसिकली। अब नेक्स्ट केस में, इन द नेक्स्ट केस व्हाट यू विल हैव इज नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगले मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमेशा याद रखो, दिस इज सो सिंपल, ये चैप्टर ही इतना सिंपल है, सिर्फ करना क्या है, गो बैक टू दिस केस। स्ट्रेस स्ट्रिंग में फंडामेंटल में था एक, फिर था 3, कितने कितने से लूप्स बढ़ रहे हैं, एक एक से। यहाँ पे भी वही होने वाला है, यहाँ पे पहले कितना था, हाफ, अब होगा 1.5, राइट, 1.5, यू सी 1.5, सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे थे 2 नोड्स और एक एंटी नोड फंडामेंटल में, यहाँ पे था फंडामेंटल में एक नोड और एक एंटी नोड, राइट। एक लूप बढ़ेगा मतलब नोड और एंटी नोड का एक एक से नंबर बढ़ेगा। लुक, दैट इज व्हाई आई टेल यू कि ये चैप्टर समझना है ना, यू हैव टू बी लिटिल अटेंटिव टू दिस। फर्स्ट मोड 1 लूप, 2 नोड्स, एक एंटी नोड। सेकेंड मोड 2 लूप्स, 1 2 3, 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एक एक से वैल्यू बढ़ी है, 2 का 3 हो गया, 1 का 2 हो गया, अगला 4 और 3 होगा, अगला 4 और 3 है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 and 1 है, वहां पे 2 and 2 होगा, 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स, तो 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। वंस यू नो दिस, एक बार ये पता लग गया, फर्स्ट थिंग इज टू लोकेट नोड। एक तो यही बनने वाला है क्लोज एंड पे, दूसरा समवेयर ओवर हियर। क्यों? क्योंकि आपके पास 1.5 लूप है, क्या आ गया आपका 1.5 लूप हो गया। दिस इज हाउ इट इज। तो एंटी नोड कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देन our task is again the same, you want to find out frequency in this case will be v by lambda 1, है ना। this is corrected length L, और L in this case is यहाँ node to node lambda by 2, और node to anti node lambda by 2 plus lambda by 4, फिर lambda by 4 है ना, lambda by 2 is half मतलब 0.5 and lambda by 4 is 0.25, 0.5 or 0.25 is 0.75, which is 3 by 4, 3 lambda 1 by 4. So lambda 1 from here will be 4l by 3, put it here, n1 equal to v upon 4l by 3. So what is this? Fundamental frequency. So n1 equal to 3 times of fundamental frequency. Good. Then अगले मोड में क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9। तो सिमिलरली अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम लोग हर एक को डिराइव करते बैठे, तो यू शुड नो हियर दैट n2 विल बी 5n, n3 विल बी 7n, n4 विल बी 9n, so on so forth. So what do you see? You see that conclusion number 1, what do we see? Frequencies available or present are frequencies present in this case मतलब for a closed organ pipe n, 3n, 5n, 7n, 9n मतलब only odd harmonics are present. For a stress string all harmonics are present, here you have only odd harmonics, सिर्फ odd harmonics है। अब अगर odd harmonics है तो यहाँ पे दिख रहा है, ये है फर्स्ट ओवरटोन 3n, ये है फिफ्थ 5n मतलब फिफ्थ हार्मोनिक इज सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, and so forth. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ
pth over tone, and P is 2P plus 1N. Put P equal to 1. P की वैल्यू 1, तो 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3N. P equal to 2, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5N. Then you have 7N, then you have 8N. अगर मैंने पूछा what is the frequency of fifth overtone, fifth overtone, 11th harmonic, 11N. What is the frequency of sixth harmonic? Sixth harmonic, sixth harmonic है ही नहीं इसमें, it is absent, right? What is seventh harmonic? 7N, मतलब 7V by 4N, correct? Good. तो ये याद रखना, हार्मोनिक और ओवरटोन अलग अलग चीजें हैं. What is eighth harmonic? Absent, it is not there. Okay, then ये हो गया आपका पहला केस. कौन सा केस? क्लोज्ड पाइप. फिर सिमिलरली यू हैव वाइब्रेशंस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. अब वो बुक में टाइटल क्या है वो आप देख लेना, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. तो वाइब्रेशंस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. एंड ऑफ कोर्स पहला तो हमने ऑलरेडी करके रखा है. तो ये है फंडामेंटल. कितने लूप? 1, 2 हाफ, मतलब 1 लूप. तो यहां पे दिख रहा है हमको इट इज 2 हाफ लूप, 2 हाफ लूप्स. ओके, नहीं तो 2 and a half समझ लोगे. तो यहाँ पे हाफ प्लस हाफ, दैट इज 1 लूप. 1 और 2 एंटी नोड्स और 1 नोड, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव. तो you should remember this. It is exactly the same case compared to stretched string. सिर्फ वहां पे 2 नोड्स थे, 1 एंटी नोड था. यहाँ पे 2 एंटी नोड्स है और 1 नोड है. बाकी there is no other difference. And then यहां से यहां तक आपका आ गया करेक्टेड लेंथ. तो आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी V by lambda. बट L यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4. ऐसा सोचना ही नहीं है हमने ये सोचना है कि 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स लैम्डा बाय 2. तो दिस इज लैम्डा बाय 2. तो L इक्वल टू लैम्डा बाय 2. तो लैम्डा इक्वल टू 2L. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V by 2L. गुड. देन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये था फंडामेंटल मोड. दिस वाज फंडामेंटल मोड. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एंड एज आई टोल्ड यू, सिर्फ नोड और एंटी नोड को एक एक से बढ़ाते जाओ. तो गो ऑन इंक्रीजिंग नोड एंड एंटी नोड बाय 1 and 1. तो व्हाट यू विल सी हियर इज, अब हो जाएंगे 3 एंटी नोड, 2 नोड्स. 3 एंटी नोड. पहले एंटी नोड को लोकेट कर लेते हैं. ये एक, ये सेंटर में दूसरा, यहाँ पे तीसरा. करेक्ट, ऐसा है. और लूप कितना था? हाफ एंड हाफ, है ना, मतलब 1. अभी कितने होंगे? 2 मतलब 1 फुल और 2 हाफ, राइट? दिस इज हाफ एंड हाफ. 1 लूप बढ़ना मतलब 1 फुल लूप एंड 2 हाफ लूप्स. तो 1 फुल लूप एंड 2 हाफ लूप्स. More or less like this. अभी डायग्राम को छोड़ दो, but this is how it is. Okay, good. तो वापस से वही स्टोरी, n equal to V by lambda 1, but here length is equal to, अब you see, यहां से यहां तक lambda by 4, फिर यहां से यहां तक lambda by 2, फिर lambda by 4, lambda. 2 हाफ और 2 हाफ है कि 1 हाफ है? 1 हाफ है ना. ये यहां से यहां तक लैम्डा बाय 2. ये 1 क्वार्टर है और ये 1 क्वार्टर है. 1 4 1 4 1 हाफ और हाफ 1. तो L इक्वल टू लैम्डा 1. तो N1, ये N1 है. यहाँ पे लिखा था कि नहीं मुझे याद नहीं, तो लिखा था, ठीक है. दिस इज V by lambda 1. व्हाट इज lambda 1? L.
Can you multiply divide by 2? Yes. So what do you see? 2n. So first overtone is second harmonic. Similarly, you will have second overtone, third harmonic, third overtone, fourth harmonic, fourth overtone, fifth harmonic, right? Conclusions on the similar line. Conclusions. Frequencies present are n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n. मतलब all the harmonics are present. Frequency of peak overtone is p plus 1n. First overtone was 2n, so put p equal to 1. First overtone 2n, second overtone 3n. तो देखोगे अगर तो ओपन पाइप के लिए और स्ट्रिंग के लिए सब सेम है, एवरीथिंग इज सेम अपार्ट फ्रॉम वहां पे पहले मोड में 2 नोड्स और एक एंटी नोड था, यहाँ पे 2 एंटी नोड और एक नोड है. दैट इज व्हाट इट इज डन. तो इसके बाद ये जो एंड करेक्शन ई है इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको बोला है, राइट? तो यू हैव टू डिराइव formula for end correction in terms of fundamental frequency and length of 2 different pipes. So you are supposed to derive end correction का formula. तो अब ऐसा है, end correction का formula आपको चाहिए और आपके पास 2 pipes है of the same inner diameter. मतलब आपके पास जो 2 पाइप है ना उसका inner diameter is same. Good. But what is not same is length. So what you have is अब मैं एक के लिए बताने वाला हूं, दूसरा आप खुद करोगे. एक के लिए बताने वाला हूं मतलब यहाँ पे 2 पाइप्स थे हमारे पास. कौन से 2 पाइप थे? एक था पाइप ओपन एट बोथ एंड्स और एक था क्लोज्ड एट वन एंड. तो यू रिमेंबर दिस इज स्मॉल एल और एंड करेक्शन जो होगा वो ऊपर आएगा E. सो दिस इज स्मॉल एल. इसको मैं L1 बोल रहा हूं. दूसरा पाइप है हमारे पास ऑफ द सेम इनर डायामीटर बट लेंथ इज डिफरेंट. तो इसका लेंथ है L2. एंड करेक्शन ऊपर होगा E, तो इसका करेक्टेड लेंथ हो जाएगा L1 इक्वल टू स्मॉल L1 प्लस E. और यहाँ पे एंड करेक्शन ऊपर होगा तो इसका करेक्टेड लेंथ हो जाएगा L2 प्लस E. E1 E2 मत लिख देना क्योंकि ऐसा टोल्ड यू इनर डायामीटर इज सेम और एंड करेक्शन इज 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायामीटर. तो अगर आपने द मोमेंट यू राइट डाउन डिफरेंट इनर डायामीटर खत्म, मतलब यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टॉपिक. क्योंकि डायामीटर अलग अलग हो गया तो एंड करेक्शन अलग अलग हो गया तो इक्वेट नहीं कर पाओगे आप. सी हाउ टू स्टार्ट. First of all, fundamental frequency is going to be different. Why? क्योंकि fundamental frequency as you see depends on length. है ना? इसमें भी और इस केस में भी fundamental frequency depends on length, right? लेकिन length, corrected length depends on small l, मतलब length of tube, correct? तो हमने यहाँ पे 2 ट्यूब लिए, दोनों का लेंथ अलग अलग लिया, मतलब दोनों का जो करेक्टेड लेंथ है वो भी है अलग अलग. और अगर करेक्टेड लेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अलग अलग. दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नॉट द सेम. बट व्हाट इज सेम? दोनों के अंदर क्या है? एयर. और एयर में साउंड का स्पीड क्या होता है? सेम. मतलब यू ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग दिस वे, व्हाट इज सेम? v1 इक्वल टू v2. देन बट v was, if you remember, n lambda. तो n lambda 1 इक्वल टू n lambda 2. Correct? You start from here. अब what is wavelength? What is wavelength? अगर दोनों का फंडामेंटल मोड ले लिया मैंने, ये n1 जो है ना, this is not overtone here. n2 is not overtone here. ये n1 और n2 they are not overtones. They are fundamental frequencies of first pipe and second pipe. नहीं तो इसको overtone बोल दे तो यहीं पे खत्म सब. Now lambda 1. फंडामेंटल मोड. व्हाट वाज लैम्डा 1 फॉर फंडामेंटल मोड? लिखा है कहीं पे? व्हाट इज लैम्डा फॉर फंडामेंटल मोड? 4 टाइम्स ऑफ
L। तो यहाँ पे आप लिखोगे N1 4 टाइम्स ऑफ L1 इंटू 4 टाइम्स ऑफ L2, 4 और 4 गया, N1 L1 इक्वल टू N2 L2, N1 L1, but L1 is L1 small l1 plus e and capital L2 is small l2 plus e। हमें क्या फाइंड करना है? एंड करेक्शन e। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। N1 L1 प्लस N1 E इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 E। E को एक साइड पे लाओ, तो N1 E माइनस N2 E इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। E कॉमन निकाल लो, N1 माइनस N2 इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। E इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस N2। मिल गया, हो गया, खत्म, डन, राइट। दिस इज एंड करेक्शन फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। फॉर ओपन एट वन एंड सिर्फ यहाँ पर 2 आएगा एक्स्ट्रा। कैसे कर लेते हैं, तो लिखेंगे नहीं हम लोग, कर लेते हैं, बट वी विल नॉट राइट इट डाउन, यू सी। तो ओनली चेंज E की जगह पे 2E, यहाँ पे भी दूसरे पाइप में भी E की जगह पे 2E, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 मतलब 2 and 2 मतलब 2 and 2 मतलब 2 मतलब यहाँ पे 2, हो गया, डन। So this is how you derive the formula for what? End correction of 2 different pipes है यहाँ पे, but with same inner diameter. So this is how you can derive this. Clear यहाँ तक? अब the last topic of this chapter is formation of beads. Bead formation. तो सबसे पहले ये समझ लो कि बीट फॉर्मेशन क्या होता है। इट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। जैसे सुपरपोजिशन ऑफ लाइट हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट स्पॉट, डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क स्पॉट। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड मतलब लाउड साउंड, और डिस्ट्रक्टिव मतलब नो साउंड। उसको बोलते हैं, लाउड साउंड को बोलते हैं वैक्सिंग, और नो साउंड को बोलते हैं, या लो साउंड को बोलते हैं वेनिंग। तो अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड व्हेन 2 साउंड वेव्स सुपरइम्पोज इज कॉल्ड एज बीट फॉर्मेशन, राइट। तो ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हर्ड, इट इज जस्ट लाइक दिस। स्कूल में जब थे, अभी नहीं, पुराना जमाना जब मैं था, तो इलेक्ट्रिक बेल नहीं होता था। They used to put a bell like a temple one, and you hit it, loud sound. Then sound used to decrease slowly. Then no sound. Then again used to increase. So that was the best example of beat formation. याद रखना, 2 words important है यहाँ पे, alternate waxing and waning मतलब loud and no sound। दूसरा सुपरपोजिशन। तीसरा, when I told you, जब हम सुपरपोजिशन की बात कर रहे थे तो 2 वेव्स चाहिए कम से कम, 2 or more waves should reach at a point simultaneously। मैंने आपको तब बताया था कि हम वहां पे एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट ले रहे थे। y1 was a1 sin omega t, y2 was a2 sin omega t plus phase difference, correct? In case of beat formation, amplitude is same, frequencies are not the same, frequencies are slightly different। मतलब होता क्या है, और एक चीज और याद रखो, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? साउंड की। किसकी? साउंड की। साउंड वेव कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। मैं फिर भी ट्रांसवर्स वेव का नोटेशन यूज करता हूं, क्योंकि क्रेस्ट एंड ट्रफ किसमें बनते हैं? ट्रांसवर्स में। साउंड में क्या बनता है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। लेकिन स्टिल वी यूज नोटेशंस मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ टू शो साउंड वेव्स, क्योंकि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अब ऐसा है, हमारे पास पहला वेव है, लेट अस टेक फर्स्ट वेव। Just a minute, because this needs to be very accurate, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं कहां से क्या आया।
तो दिस आर डमी लाइंस विच आई विल रिमूव लेटर, इसको हटा दूंगा मैं, डोंट वरी, जस्ट डमी लाइंस. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ये आपके पास आ गया पहला वेव, राइट. दिस इज फर्स्ट वेव, साउंड वेव ऑफ कोर्स. ओके, देन in case of beat formation, the two waves have same amplitude but slightly different frequency. Remember this, same amplitude but slightly different frequencies. Always remember, slightly different frequency का मतलब होता है slightly different wavelength. क्यों? Because frequency and wavelength are related. How? Frequency is c by lambda. Frequency is c by lambda. तो फ्रीक्वेंसी अलग होना मतलब वेवलेंथ अलग होना, वेवलेंथ अलग होना मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस अलग होना. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. तो इन केस ऑफ बीट फॉर्मेशन यू हैव टू वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो एम्पलीट्यूड तो सेम है बट फ्रीक्वेंसीज आर स्लाइटली डिफरेंट. देखो, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज ना एग्जैक्टली, अगर आपको एग्जैक्टली याद है, नहीं याद है तो फिर लेके जाएंगे, याद करवाना पड़ेगा, नहीं याद होगा तो करो याद. ये इन सच केसेस जब आप इंटरफेरेंस की बात करते हो, तो इंटरफेरेंस के केस में क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड अलग अलग थे बट एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, या फिर एग्जैक्ट आउट ऑफ फेस, राइट. बट इंपॉर्टेंट, amplitudes were different but phase difference was constant. इसलिए आप लिख पाते हो ना ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि आपको पता है फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा. मतलब हमेशा या तो क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा या तो हमेशा ट्रफ और क्रेस्ट मैच होगा. लेकिन इन केस ऑफ दिस कोई पॉइंट ऐसे है जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट का एग्जैक्ट मैचिंग हो रहा है और कोई पॉइंट ऐसे है कि एग्जैक्ट मैचिंग नहीं भी हो रहा है, राइट. और कोई पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ का ओवरलैप होगा. तो यहाँ पे दिस इज अ डिफरेंस, नॉट एवरी टाइम क्रेस्ट विल ओवरलैप विद क्रेस्ट और नॉट एवरी टाइम क्रेस्ट विल ओवरलैप विद ट्रफ. एट सम पॉइंट्स क्रेस्ट विल ओवरलैप विद ट्रफ एंड एट सम पॉइंट्स इट विल नॉट. तो ऐसे केसेस में इसका जब रिजल्टेंट वेव देखोगे तो रिजल्टेंट वेव लुक्स समथिंग लाइक दिस. तो इफ यू लुक एट द रिजल्टेंट वेव में you will find that ऐसा पैटर्न रिपीट होते जाएगा, राइट. ऐसा क्यों हुआ? इंटरफेरेंस का केस जब था तो एग्जैक्टली जब क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हुआ, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाज बिगर. और जब क्रेस्ट और ट्रफ का ओवरलैप हुआ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाज स्मॉलर. लेकिन यहाँ पे किसी किसी पॉइंट पे क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट का मैचिंग हो गया, और किस पॉइंट पे क्रेस्ट ट्रफ का मैच हो गया, राइट. और किसी पॉइंट पे ना क्रेस्ट ट्रफ मैच हो रहा है, तो देयर इज सम अदर पॉइंट व्हिच आर ओवरलैपिंग. तो यू विल सी एम्पलीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मैक्सिमम मतलब लाउड साउंड वैक्स, डिक्रीजिंग 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 नो साउंड मतलब वेन, राइट. फिर वापस इंक्रीजिंग 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 वैक्स. तो अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज बीट फॉर्मेशन. तो ऐसा एनवलप भी दिखा सकते हो, राइट. अब इंपॉर्टेंट, कंपेयर नोड एंटी नोड जैसा है ये, अल्टरनेट नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, अल्टरनेट वेन वैक्स. तो इक्वेशन भी बहुत सिमिलर होंगे, जैसे स्टेशनरी वेव के इक्वेशन थे वैसे आएंगे. सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो पहला वेव है y1 इक्वल टू, डू नॉट राइट a1, इट इज a साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई n, राइट, 2 पाई n, लेकिन n1, क्योंकि द फ्रीक्वेंसीज आर स्लाइटली डिफरेंट, नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस शुड बी देयर. तो y2 इक्वल टू, डू नॉट राइट a2 साइन ऑफ 2 पाई n2t, प्लस फेज डिफरेंस लिखना नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया फेज डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, राइट. रिजल्टेंट वेव इज
y1 प्लस y2, तो a साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस a साइन ऑफ 2 पाई n2t, a टेकन आउट टू बी कॉमन, तो क्या आएगा अंदर, साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2t, दिस इज c, दिस इज d। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला कल ही देखा था, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, a आउटसाइड 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस बिकॉज आई एम लेजी, साइन c माइनस d बाई 2, तो साइन c माइनस d बाई 2, सॉरी कॉस c माइनस d बाई 2, ये आ गया फॉर्मूला, राइट। अब यू कैन टेक आउट 2 पाई t आउटसाइड, तो अंदर बचेगा n1 प्लस n2 बाई 2, तो व्हाट यू विल हैव इज y इक्वल टू, पहले तो ये 2 और ये a 2a, देन साइन ऑफ 2 पाई t बाहर निकाल लिया, n1 प्लस n2 बाई 2, 2 को कैंसल मत करना, नहीं करना है, देन cos of what, cos of again 2 पाई t, सिर्फ माइनस था ना, तो n1 माइनस n2 बाई 2, इसको भी 2 को कैंसल मत करना, राइट। तो यू कैन राइट दिस एज y इक्वल टू 2a, cos को पहले लिख लो, cos of 2 पाई t n1 माइनस n2 बाई 2 एंड साइन ऑफ 2 पाई n एवरेज t, y n एवरेज, n1 plus n2 by 2 is average वैल्यू होता है ना ये, राइट, where n average is n1 plus n2 by 2, therefore y equal to r, जैसे वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, r साइन ऑफ 2 पाई n average t, 2 pi n average t, where r is resultant amplitude which is equal to 2a cos of 2 pi t n1 minus n2, so this is what you need to know, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये जो है this is nothing but resultant amplitude, what is this, resultant amplitude, this is resultant amplitude, okay, good, यहां तक क्लियर। तो नंबर 1, बीट फॉर्मेशन में अल्टरनेट वैक्सिंग मीनिंग होता है, बीट फॉर्मेशन में जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो दोनों वेव्स के फ्रीक्वेंसी का एवरेज होता है, राइट, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 2a cos 2 pi t n1 minus n2 by 2। अब हमें देखना है, जैसे वहां पे था कंडीशन फॉर नोड्स एंटी नोड्स, यहाँ पे कंडीशन फॉर वैक्स एंड वेन, तो कंडीशन फॉर वैक्स या फिर वैक्सिंग ऑफ साउंड, एंड देन यू हैव ऑफ कोर्स r equal to 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2। वैक्सिंग ऑफ साउंड मतलब लाउड साउंड लाउड तब होगा, आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, चाहे वो लाइट हो चाहे वो साउंड हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होना है तो एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना है, और एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना है तो कॉस की वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि आर किस पे डिपेंड करता है, कॉस पे। तो फॉर वैक्सिंग you need to know that cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 should be equal to plus minus 1, and कल ही बताया था ये cos p pi पे होता है, if you remember this, p pi cos of p pi, p की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हो, if you put 0 cos 0 1, if you put 1 cos pi minus 1, so on so forth, तो cos तो गया,
तो 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई 2 इक्वल टू p पाई रह गया, राइट। देन जैसे in case of nodes and nodes, you were trying to find out, actually you were finding out what are the locations, कहां पे एंटीनोड बना, यहाँ पे कब कब बना। तो you will find out instance of time where you have loud sound। तो कब कब बना, तो waxes are heard at t equal to, t को एक साइड रखो, बाकी को शिफ्ट कर दो, करेक्ट। और ये 2 तो अभी कैंसिल भी कर लो, अभी इसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो t इज इक्वल टू p अपॉन n1 माइनस n2, मतलब अगर p की वैल्यू जीरो डालूंगा तो सबसे पहले बनेगा वैक्स। स्टार्ट करना पड़ेगा ना, बेल बजाना चालू करोगे तब सुनाई देगा कुछ, राइट। तो जैसे जहां पे स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया वहां एंटी नोड, जब फर्स्ट टाइम साउंड क्रिएट किया तब वैक्सिंग लाउड साउंड, तो 0। फिर p की वैल्यू 1 अपॉन n1 माइनस n2 2, फिर n1 माइनस n2 ऊपर 2 आएगा, देन 3 अपॉन n1 माइनस n2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो these are the instance of time instance when you hear waxes, or frequency, sorry, time period of beat is the difference between, is the time interval between two waxes। पहला वैक्स सुनाई दिया, फिर दूसरा, इसके बीच में जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ बीट, राइट। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सेस और वेन। वेन तो सुनाई देता नहीं है, अगर सुनाई नहीं देगा तो मेजर कैसे करोगे, जो सुनाई देगा उसी को मेजर करोगे ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम, या तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, या फिर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, या तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, एक ही बात है। तो यू विल ऑलवेज गेट 1 अपॉन n1 माइनस n2। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। अब स्मॉल n तो हम पहले यूज कर चुके हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, यूज कैपिटल N। 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब n1 माइनस n2। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज n1 minus n2, मतलब it is difference in the frequencies of the two interfering waves। सिंपल है। अगर एक 251 हर्ट्ज का एक साउंड है और दूसरा 250 हर्ट्ज का है, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, मतलब यू विल हियर ओनली 1 वैक्स पर सेकंड, हर एक सेकंड में एक बार आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। सिमिलरली कंडीशन फॉर वेन सेम है, सेम कंडीशन फॉर वेनिंग, कंडीशन और वेनिंग सेम, एग्जैक्टली सेम लाइंस पे। जैसे यहां पे लिखा आपने r इक्वल टू, तो यहाँ पे भी r इक्वल टू 2a cos ऑफ क्या था 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाय 2 फॉर वेन्स, मतलब नो साउंड शुड बी हर्ड, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी 0। ये 0 कब होगा, जब cos की वैल्यू 0 होगी, मतलब जब cos ऑफ 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन cos की वैल्यू 0 कब होती है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो cos ऑफ 2p plus 1 पाई बाई 2, put p equal to 0 you get pi by 2, put p equal to 1 you get 3 pi by 2, 5 pi by 2 so on so forth। cos तो गया, तो 2 pi t n1 minus n2 by 2 equal to 2p plus 1 pi by 2, pi और pi गया। तो again veins are heard, you cannot hear। तो veins के लिए t क्या आएगा, t, अरे ये यहां से इसको उड़ा दो ना, क्या बचा 2p plus 1 अपॉन 2p plus 1 अपॉन n1 माइनस n2। पक्का, बाकी के 2 बाई 2 ऐसा आप बोल रहे हो, राइट। देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया नोड्स एंटी नोड्स का फॉर्मेशन और वैक्स का सेम है।
एग्जैक्टली दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड था, वैसे एग्जैक्टली दो वैक्सेस के बीच में एक वेन आएगा। मतलब पहला वेन बनना चाहिए 1/2 n1 माइनस n2 पे, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, उसके सेंटर है। तो देखते हैं। तो इफ आई पुट p इक्वल टू 0, इफ आई पुट p इक्वल टू 0, तो ऊपर आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n, सही है। इफ आई पुट p इक्वल टू 1, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बराबर इन दोनों के बीच में पहला वेन, इन दोनों के बीच में दूसरा वेन, इन दोनों के बीच में तीसरा वेन, तो करेक्ट है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपने टाइम पीरियड फाइंड किया, टाइम पीरियड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू वेन्स, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो तो वापस से मिलेगा 1/n1 माइनस n। सबट्रैक्ट करके देखो यही मिलने वाला है, राइट। तो frequency of beat can also be defined from time period using veins. So this is again n1 minus n2. So that is the end of this chapter.